दीनदयाळ उपाध्याय केबल स्टेड ब्रिज पर ध्यान आकर्षक लाइटिंग તેમજ અત્યાધુનિક સ્ટ્રક્ચરલ હેલ્થ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ તથા પીપીપી ધોરણે બનેલા એરપોર્ટ આઇકોનિક રોડનું લોકાર્પણ સહિત કુલ ₹169 કરોડના ખર્ચે સાકાર થયેલા અને સાકારિત થનારા કામો શહેરીજનોની સુવિધામાં અનેરો વધારો કરશે. સુરત શહેરે ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ પોલિસી અંતર્ગત 500 પબ્લિક ચાર્જિંગ સ્ટેશન બનાવવાનો ધ્યેય રાખ્યો છે. પ્રથમ તબક્કામાં વિવિધ જાહેર સ્થળો પર 25 પબ્લિક ચાર્જિંગ સ્ટેશનનું લોકાર્પણ અને બીજા 25 પબ્લિક ચાર્જિંગ સ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત તથા ઈ બસ ડેપો, વર્કશોપ અને ટર્મિનલ સહિતની કુલ ₹51 કરોડની વિવિધ પર્યાવરણલક્ષી સુવિધાઓ સુરતવાસીઓને સ્વચ્છ આબોહવા પ્રદાન કરશે. સ્વસ્થ સુરત માટે સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના કુલ ₹890 કરોડના કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત સંપન્ન થયું છે. અસરમાં, ભટાર અને બમરોલી ખાતે સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટની ક્ષમતા વધારવાનું કાર્ય તેમજ વાલક ક્રીક ખાતે સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનું નિર્માણ કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. 259 કરોડના ખર્ચે શિક્ષણલક્ષી વિકાસ કાર્યો શહેરીજનોની સુવિધામાં કરશે વધારો. લિંબાયત ખાતે મુક્તિધામ, સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ સાથે નવું ફાયર સ્ટેશન, આરોગ્ય શિક્ષણ ક્ષેત્રે સ્મીમેરમાં 17 માળની ફર્નિચર સાથેની પીજી હોસ્ટેલ અને નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં 1200 વિદ્યાર્થીઓ માટે 12 માળની બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ હોસ્ટેલ સહિત કુલ ₹195 કરોડના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત સંપન્ન થયા છે. કતારગામમાં ડભોલી ખાતે અત્યાધુનિક સુવિધાયુક્ત લાઇબ્રેરી તથા મનોરંજન કેન્દ્ર નિર્માણ પામશે. ₹12 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામેલ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી IIITનું પ્રથમ ચરણ પૂર્ણ થયું છે. ₹112 કરોડના ખર્ચે વિવિધ બ્રિજનું નિર્માણ કાર્ય તથા સાયણ ખાતે પાવરલૂમ ક્લસ્ટર ડેવલપમેન્ટનું ખાતમુહૂર્ત સંપન્ન થયું છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત શહેરમાં સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ, અમૃત પ્રોજેક્ટ અને સ્વચ્છ ભારત મિશન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ગુજરાત શહેરી વિકાસ યાત્રા અવિરતપણે ચાલી રહી છે. આમ કુલ ₹3,472.54 કરોડના ખર્ચે જનહિતલક્ષી વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને અન્ય મહાનુભાવોની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં સંપન્ન થયું છે. સમગ્ર સુરત ક્ષેત્રમાં વિવિધ પ્રકલ્પો લઈ રહ્યા છે આકાર. સુરતવાસીઓના સપના થઈ રહ્યા છે સાકાર. પ્રત્યેક સુરતવાસીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપનો. ગુજરાત જેમની જન્મભૂમિ છે અને ભારત એમની કર્મભૂમિ છે. આજે સમગ્ર દેશમાં જેમના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રયાસથી પરિણામ સુધીની વિકાસ યાત્રા પ્રશસ્ત છે એવા ગુજરાત અને ભારત દેશની સાફલ્ય ગાથાના શિલ્પી, ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ખૂબ બધી તાળીઓના હર્ષનાદ સાથે સાદર આમંત્રિત કરીએ આપણને સૌને માર્ગદર્શિત કરવા. भारत माता की आप सौ सूरतवासियों ने नवरात्रिनी अनेक अनेक शुभकामनाओं. वैसे नवरात्रि के समय मेरे जैसे व्यक्ति को सूरत आना आनंददायक है, अच्छा लगता है. लेकिन नवरात्रि का व्रत चलता हो तब सूरत आने में थोड़ा कठिन लगता है. सूरत आओ,
और सुरती खाना खाए बिना जाओ। ये मेरा सौभाग्य है कि नवरात्रि के इस पावन अवसर के समय मैं आज और कल गुजरात की धरती पर इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल संस्कृति और आस्था से जुड़े कई बड़े आयोजनों का हिस्सा बनूंगा। गुजरात के गौरव को और बढ़ाने का ये सौभाग्य मिलना, आपके बीच आना और आप सबके आशीर्वाद लेना, आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात के लोगों का, सूरत के लोगों का धन्यवाद करने के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ रहे हैं। इतना प्यार आपने दिया। सूरत में विकास का लाभ जिस तरह हर घर तक पहुंच रहा है, वो जब मैं देखता हूं, सुनता हूं, तो मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ जाती है। इसी क्रम में आज सूरत के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है। इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट सामान्य सूरतवासियों को, मध्यम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को ये अनेक प्रकार की सुविधाएं और लाभ पहुंचाने वाले हैं। मुझे बताया गया कि अमृत सरोवर, 75 अमृत सरोवर सूरत में उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसके लिए भी जिले के सभी साथी, शासन, प्रशासन, हर कोई और मेरे सूरतवासी भी बधाई के पात्र हैं। साथियों, सूरत शहर लोगों की एकजुटता और जन भागीदारी दोनों का बहुत ही शानदार उदाहरण है। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत की धरती पे न रहते हो। एक प्रकार से मिनी हिंदुस्तान सूरत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शहर, सूरत इस बात के लिए मैं हमेशा उसका गर्व करता हूं, ये शहर श्रम का सम्मान करने वाला शहर है। यहां टैलेंट की कद्र होती है, प्रगति की आकांक्षाएं पूरी होती है, आगे बढ़ने के सपने साकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है, ये शहर उसे ज्यादा मौका देता है, उसका हाथ थामकर आगे ले जाने का प्रयास करता है। सूरत की यही स्पिरिट आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, इस सदी के शुरुआती दशकों में जब दुनिया में
3P यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चर्चा होती थी, तब मैं कहता था कि सूरत 4P का उदाहरण है। 4P यानी पीपल्स, पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप। यही मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। सूरत के लोग वो दौर कभी भूल नहीं सकते जब महामारियों को लेकर, बाढ़ की परेशानियों को लेकर यहां अपप्रचार को हवा दी जाती थी। उस कालखंड में यहां के व्यापारी और व्यापारी समाज के अनेक लोगों से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर सूरत शहर की ब्रांडिंग हो गई तो हर सेक्टर, हर कंपनी की ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। और आज देखिए, सूरत के आप सभी लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया है। मुझे खुशी है कि आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होते शहर में सूरत का नाम है और इसका लाभ यहां हर व्यापार कारोबार को हो रहा है। भाई और बहनों, पिछले 20 वर्षों में सूरत ने देश के बाकी शहरों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रगति की है, तेजी से प्रगति की है। आज हम अक्सर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में सूरत का गर्व से जिक्र करते हैं, लेकिन ये सूरत के लोगों की निरंतर मेहनत का परिणाम है। सैकड़ों किलोमीटर से अधिक के नए ड्रेनेज नेटवर्क ने सूरत को एक नया जीवनदान दिया है। 2 दशकों में इस शहर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बनी है, उससे भी शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिली। आज भाकर और बामरोली में नई कैपेसिटी जुड़ गई है। यहां जिन साथियों को काम करते हुए 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, वो इस बदलाव के बहुत बड़े साक्षी हैं। बीते वर्षों में सूरत में झुग्गियों की संख्या में भी काफी कमी आई है। इन 2 दशकों में यहां गरीबों के लिए, झुग्गियों में रहने वालों के लिए करीब करीब 80,000 घर बनाए गए हैं। सूरत शहर के लाखों लोगों के जीवन स्तर में इससे सुधार आया है। साथियों, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद और घर बनाने में भी तेजी आई है और सूरत के गरीबों, मिडिल क्लास को दूसरी अनेक सुविधाएं भी मिलने लगी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में अभी तक लगभग 4 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। इसमें 32 लाख से अधिक मरीज गुजरात के और लगभग 1.25 लाख मरीज ये मेरे सूरत के हैं। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी, पटरी, ठेले पर काम करने वाले देश के लगभग 35 लाख साथियों को अभी तक बैंकों से बिना गारंटी का
सस्ता ऋण मिल चुका है। अभी शायद आपने दुनिया में बहुत जाने माने दानवीर बिल गेट्स का एक आर्टिकल पढ़ा होगा। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, एक लेख लिखा है, उसमें इन 7 चीजों का उल्लेख किया है उन्होंने। साथियों, इसमें गुजरात के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को और सूरत के करीब 40,000 साथियों को इसकी मदद मिली है। साथियों, सूरत शहर के पश्चिमी हिस्से रांदेर, अड़ायन, पाल, हजीरा, पालनपुर, जहांगीरपुरा और दूसरे क्षेत्रों में आज जितनी चहल पहल दिखती है वो 20 साल के अखंड एकनिष्ठ परिश्रम का परिणाम है। शहर के अलग अलग हिस्सों में तापी पर आज दर्जन भर से ज्यादा पुल है जो शहर को भी जोड़ रहे हैं और सूरत वासियों को समृद्धि से भी जोड़ रहे हैं। इस तरह की इंटरसिटी कनेक्टिविटी बहुत कम देखने को मिलती है। सूरत सही मायने में सेतुओं का शहर है जो मानवीयता, राष्ट्रीयता और समृद्धि की खाइयों को पाट करके जोड़ने का काम करता है। भाई और बहनों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है वे सभी सूरत की इस भी पहचान को सशक्त करने वाले हैं। सूरत के कपड़ा और हीरा कारोबार से देश भर के अनेक परिवारों का जीवन चलता है। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो सूरत विश्व के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित होने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब सूरत दुनिया भर के डायमंड कारोबारियों, कंपनियों के लिए एक आधुनिक ऑफिस स्पेस के रूप में पहचाना जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने सूरत पावरलूम मेगा क्लस्टर, ये बहुत बड़ा निर्णय है भारत सरकार का, पावरलूम मेगा क्लस्टर उसकी स्वीकृति दे दी है और इससे सायन हो, ओलपाड़ हो, इन क्षेत्रों में पावरलूम वालों को जो समस्याएं आती थी वो समस्याएं कम होगी। यही नहीं, इससे प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होगा। साथियों, सुरती लोगों की खासियत है, सुरती लाला એને મોજ કર્યા વગર ન ચાલે। અને બહારથી આવનારો માણસ પણ જોતામાં સુરતી લાલાના રગે રગાઈ જાય। અને હું તો કાશીનો એમપી છું એટલે લોકો રોજ મને સંભળાવે સુરતનું જબડ, કાશીનું મરણ। અને સાંજ પડી નથી કે ताप्ती नदी ने आसपास इलाकों में घूमकर ठंडी हवा का लुत्फ उठाना और कुछ खा पी करके ही घर लौटना। इसलिए ताप्ती के किनारों सहित सूरत को और आधुनिक बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भूपेंद्र भाई और सीआर पाटिल और कॉरपोरेशन से जुड़े लोग, यहां के विधायक, इन सबको मैं बधाई देता हूं आपके इन प्रयासों के लिए।
बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोजेक्ट के बनने से सूरत वासियों की टहलने की इस आदत को और सुविधा मिलेगी। उठने बैठने सीखने के लिए नए स्थान मिलेंगे। भाइयों और बहनों, एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क जो बनी है वो सूरत की संस्कृति, समृद्धि और आधुनिकता को दर्शाती है। लेकिन यहां अनेक साथी ऐसे हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी हमारे लंबे संघर्ष को देखा है, उसका हिस्सा भी रहे हैं। तब जो दिल्ली में सरकार थी, हम उनको बताते बताते थक गए कि सूरत को एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है, इस शहर का सामर्थ्य क्या है। आज देखिए कितनी ही फ्लाइट यहां से चलती हैं, कितने ही लोग हर रोज यहां एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आपको याद होगा यही स्थिति मेट्रो को लेकर के भी थी। लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है तो स्वीकृति भी तेज गति से मिलती है और काम भी उतनी ही तेजी से होता है। भाई और बहनों, व्यापार कारोबार में लॉजिस्टिक का कितना महत्व होता है ये सूरत वाले अच्छे से जानते हैं। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी से सूरत को बहुत लाभ होने वाला है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए भी सूरत में एक बड़ी योजना पर काम शुरू हो चुका है। गोगा हजीरा रोपेक्स फेरी सर्विस ने सौराष्ट्र के कृषि हब को सूरत के बिजनेस हब से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोगा और हजीरा के बीच रोरो फेरी सर्विस की वजह से लोगों का समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है। सड़क के रास्ते गोगा और हजीरा के बीच की दूरी करीब करीब 400 किलोमीटर के आसपास होती है, जबकि समंदर के रास्ते यही दूरी कुछ ही किलोमीटर हो जाती है। अब ये इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है। इससे वजह से जहां पहला गोगा से हजीरा आने जाने में 10-12 घंटे लगते थे, वहीं अब ये सफर 3.5-4 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। हम फेरी की वजह से भावनगर, अमरेली और सौराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से सूरत आए लोगों को बहुत लाभ होगा। अब परमानेंट टर्मिनल तैयार होने के कारण आने वाले दिनों में और ज्यादा रूट खुलने की संभावना बढ़ी है। इससे यहां के उद्योगों को, किसानों को पहले से ज्यादा लाभ होगा। साथियों, हमारी सरकार सूरत के व्यापारियों, कारोबारियों की हर आवश्यकता को देखते हुए काम कर रही है, नए नए इनोवेशन कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं कि सूरत के टेक्सटाइल का एक बड़ा बाजार काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। यहां से बड़ी संख्या में ट्रकों के जरिए सामान पूर्वी यूपी भेजा जाता रहा है। अब रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट ने मिलकर एक नया समाधान भी खोजा है, एक नया इनोवेशन किया है। रेलवे ने अपने कोच की डिजाइन को इस तरह से बदला है कि उसमें आसानी से कार्गो फिट हो जाता है। इसके लिए खास तौर पर 1 टन के कंटेनर भी बनाए गए हैं। ये कंटेनर आसानी से चढ़ाए और उतारे जा सकते हैं। शुरुआती सफलता के बाद
अब सूरत से काशी के लिए पूरी एक नई ट्रेन ही चलाने की कोशिश हो रही है। ये ट्रेन सूरत से माल सामान ढो करके काशी तक जाया करेगी। इसका बहुत बड़ा लाभ सूरत के व्यापारियों को होगा, यहाँ के कारोबारियों को होगा, यहाँ के मेरे श्रमिक भाइयों बहनों को होगा। बहुत जल्द सूरत बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए भी ये सूरत पहचाना जाएगा। सूरत की नित्य नई पहचान बनती है। कभी सिल्क सिटी, कभी डायमंड सिटी, कभी सेतु सिटी, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सिटी के रूप में जाना जाएगा। केंद्र सरकार आज पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए सरकारों को मदद दे रही है। सूरत इस मामले में भी देश के बाकी शहरों की तुलना में बहुत तेजी से काम कर रहा है और इसमें सूरत को बधाई देता हूं इस काम के लिए। आज सूरत शहर में 25 चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण और इतने ही स्टेशनों का शिलान्यास हुआ है। आने वाले कुछ समय में सूरत में 500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। साथियों, बीते 2 दशकों से विकास के जिस पथ पर सूरत चल पड़ा है वो आने वाले सालों में और तेज होने वाला है। यही विकास आज डबल इंजन सरकार पर विश्वास के रूप में झलकता है। जब विश्वास बढ़ता है तो प्रयास बढ़ता है और सबका प्रयास से राष्ट्र के विकास की गति तेज होती है। इस गति को हम बनाए रखेंगे। इसी आशा के साथ सूरत वासियों जेटलो आभार मानू એટલો ઓછો। સુરતે ઉદાહરણરૂપ પ્રગતિ કરી છે દોસ્તો। હિન્દુસ્તાનમાં સુરતના સમકક્ષ અનેક શહેરો છે। સુરતે બધાને પાછળ પાડી દીધા છે અને આ શક્તિ ગુજરાતમાં જ છે દોસ્તો। આ ગુજરાતની શક્તિને ઊંડી આંચ ના આવે, ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને કોઈ ઉણપ ન રહે, એના માટે કોટી કોટી ગુજરાતીઓ પ્રતિબદ્ધ છે, સંકલ્પબદ્ધ છે। એ જ વિશ્વાસ સાથે ફરી એકવાર आप सबने खूब खूब आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સુરતના પ્રવાસે છે। સુરતમાં તેમણે જનસભાને સંબોધિત કરી। આ સાથે જ તેમણે સુરતને એક મિની હિન્દુસ્તાન સાથે સરખાવ્યું। આ સાથે જ નવરાત્રિના પર્વમાં તે સુરત આવ્યા છે તે માટે તેમણે પોતાની જાતે ધન્યવાદ કહ્યું। આ સાથે સુરતનું જમણ અને કાશીનું મરણ જે કહેવત છે તે પણ તેમણે તેમના સંબોધનમાં ઉમેરી હતી। સુરતના લોકોનું તેમણે અભિનંદન પાઠવ્યું અને આ વધુમાં જણાવ્યું કે સુરતમાં પહેલાની સરખામણીમાં ઝૂંપડપટ્ટીની સંખ્યા ઘટી છે। આ સાથે જ સુરતના લોકોમાં એકતા દેખાય છે અને જે લોકોની ભાગીદારી છે તે માત્ર સુરતમાં જ દેખાય છે। બીજા શહેરોની સરખામણીમાં સુરત ઝડપથી પ્રગતિ કરી રહ્યું છે તેવું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના સંબોધનમાં જણાવ્યું। આ સાથે જ તેમણે જણાવ્યું કે ડબલ એન્જિન સરકાર જ્યારથી આવી છે ત્યારથી તરત તમામ જે કામો છે તે ઝડપથી થઈ રહ્યા છે। વિકાસને લઈને
તમામ કાર્યો ઝડપથી થઈ રહ્યા છે। હાલ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સુરતમાં છે, તેમના હસ્તે અનેક લોકાર્પણના કાર્યો થશે। હમણાં થોડી ક્ષણો પહેલા જ તેમણે જનસભાને સંબોધિત કરી। આ સાથે જણાવ્યું સુરતમાં 25 જેટલા ચાર્જિંગ જે પોઈન્ટ છે, ચાર્જિંગ સ્ટેશન છે તે બનશે। સુરત ઝડપથી વિકાસ કરી રહ્યું છે તેવું તેમણે જણાવ્યું અને નવરાત્રી માટે તમામ સુરતવાસીઓને શુભેચ્છા પણ પાઠવી। સુરતમાં જે સુરતી ખાવાની મજા છે તેની પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વાત કરી। તેમણે જણાવ્યું કે નવરાત્રીના સમયમાં તે સુરત આવ્યા છે અને સુરતનું ભોજન ગ્રહણ નહીં કરી શકે તે માટે તેમને ખેદ પણ છે અને સુરત કઈ રીતે વિકાસ કરી રહ્યું છે, ખૂબ થોડા સમયમાં સુરતે તેની દિશા અને દશા બધે બદલી નાખી છે તે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે છે। હાલ તેઓ સુરત છે, તેમના હસ્તે અનેક વિકાસના કાર્યો અને લોકાર્પણ થવાનું છે, ખાતમુહૂર્ત થવાનું છે। તો સુરત બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લેશે ભાવનગરની મુલાકાત। વડાપ્રધાન મોદી ભાવનગર પહોંચશે। નરેન્દ્ર મોદીના સમગ્ર કાર્યક્રમની વાત કરીએ। સુરત બાદ તેઓ જશે ભાવનગર। એરપોર્ટથી 2.5 કિલોમીટર રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ભાવનગર ખાતે, જ્યાં પહોંચશે પીએમ। રોડ શો બાદ જવાહર મેદાનમાં સંવાદ કરશે વડાપ્રધાન। ત્યારબાદ ભાવનગર સહિત બોટાદ, અમરેલીના કરોડોની ભેટ આપશે, અનેક લોકાર્પણના કાર્યોમાં હાજરી આપશે। એશિયાનું સૌથી પહેલું સીએનજી પોર્ટનું લોકાર્પણ પીએમના હસ્તે કરવામાં આવશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ભાવનગરની મુલાકાત લેશે। હાલ તેઓ સુરત છે, સુરતથી થોડી ક્ષણોમાં તેઓ ભાવનગર જવા રવાના થશે, જ્યાં એરપોર્ટથી 2.5 કિલોમીટર રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ રોડ શો બાદ જવાહર મેદાન ખાતે તેઓ સંવાદ કરશે। ત્યારબાદ ભાવનગર સહિત બોટાદ અને અમરેલીના લોકોને કરોડોની ભેટ આપશે। અનેક લોકાર્પણના કાર્યો તેમના હસ્તે થશે। એશિયાનું સૌથી પહેલું સીએનજી પોર્ટ છે તેનું લોકાર્પણ પણ વડાપ્રધાનના હસ્તે થશે। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે છે, તેમના હસ્તે અનેક કરોડોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થવાના છે। ત્યારે હાલ તેઓ સુરત છે, થોડી ક્ષણો બાદ તેઓ ભાવનગર જવા રવાના થશે, જ્યાં એક ભવ્ય રોડ શોનું આયોજન છે, જેમાં ભાગ લેશે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને આ સાથે જ બોટાદ અને અમરેલીના લોકોને કરોડોની ભેટ અર્પણ કરશે। અનેક લોકાર્પણના કાર્યો તેમના હસ્તે કરવામાં આવશે। આ સાથે જ એશિયાનું સૌથી મોટું સીએનજીનો જે પોર્ટ છે તેનું પણ લોકાર્પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે થોડી ક્ષણો બાદ જ થવા જઈ રહ્યું છે। રોડ શો બાદ જવાહર મેદાન ખાતે વડાપ્રધાન સંવાદ કરશે। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આવતીકાલે બનાસકાંઠાના પ્રવાસે છે। મહત્વના સમાચાર, પીએમ નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે। હાલ તેઓ સુરત છે અને આવતીકાલની વાત કરીએ, આવતીકાલે તેઓ બનાસકાંઠાના પ્રવાસે છે। દાંતાના અંબાજી ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાજરી આપશે। તો વિકાસના કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે પીએમ। 7,908 કરોડના કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે પીએમ। 61,805 આવાસોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ તેમના હસ્તે કરવામાં આવશે। તારંગા હિલથી આબુ રોડ બ્રોડગેજ લાઇનનું પણ ભૂમિપૂજન વડાપ્રધાનના હસ્તે કરવામાં આવશે। જાહેર સભા બાદ વડાપ્રધાન ગબ્બર ખાતે આરતીમાં પણ ભાગ લેશે। આ કાર્યક્રમને લઈને વહીવટીતંત્રએ તમામ આખરી ઓપ આપ્યો છે। તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। રાજ્યભરમાંથી આવશે સભામાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો। 61,805 આવાસોનું ખાતમુહૂર્ત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે કરવામાં આવશે। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર